Hello and welcome to my dear students. Students, in this video lecture, we are going to discuss some properties of the transition elements, right? So first property we will discuss here is magnetic properties, right? तो ये प्रॉपर्टी इम्पॉर्टेंट है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। प्रीवियस ईयर बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है कि डिस्क्राइब द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, राइट। इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछा गया था, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, राइट। तो ये बात किसकी हो रही है बच्चे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात हो रही है। ओके, सो हम जो है मैग्नेटिक बिहेवियर किस तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये याद रखना है कि व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड इज़ अप्लाइड टू अ सबस्टेंस, जब भी सबस्टेंस को मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाए तो मेनली टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर आर ऑब्जर्व्ड। दो तरह के मैग्नेटिक बिहेवियर ऑब्जर्व होते हैं, वन इज़ डायमैग्नेटिक एंड अदर इज़ पैरामैग्नेटिक। ओके, व्हाट आर डायमैग्नेटिक सबस्टेंस? दीज आर रिपेल्ड बाय द अप्लाइड फील्ड, राइट। दो सबस्टेंसेस विच आर रिपेल्ड बाय द applied field, while the paramagnetic substances are attracted by the applied field, right. Substances which are strongly attracted, they are said to be ferromagnetic, right. In fact, you have to remember this ferromagnetism, it is an extreme form of paramagnetism, right. So many of the transition metals are paramagnetic, right. And you have to remember one important point here, that paramagnetism, this condition arises from the presence of unpaired electrons, right. From presence of unpaired electron, right. The compound to be paramagnetic, right, it should have unpaired electrons, each such electron having a magnetic moment associated with the spin angular momentum, okay, and orbital angular momentum, right. For the compound of the first series of transition metals, right, that is from scandium to zinc, okay, the contribution of the orbital angular momentum is effectively quenched, right, and hence is of no significance. For these, the magnetic moment is determined by the number of unpaired electrons and is calculated by using the spin only formula, right. So this is the spin only formula, right. Mu, that is magnetic moment, that is under root of n into n plus 2, where this n is the number of unpaired electron and this mu is the magnetic moment and it has the unit Bohr magneton, Bm. Okay, a single unpaired electron, okay, has a magnetic moment of 1.73 Bohr magneton. Okay, so the magnetic moment increases with the increasing number of unpaired electrons, right. So thus the observed magnetic moment gives a useful indication about the number of unpaired electrons present in the atom molecular ion. The magnetic moments calculated from the spin only formula and those derived experimentally for some ions of the first row transition elements are given in the table 4.7. Okay, the experimental data are mainly for hydrated ions in solution or in the solid state. Okay, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पहली बात कि मैग्नेटिक बिहेवियर दो तरह का होता है, एक है हमारे पास डायामैग्नेटिज्म, एक है पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है। डायामैग्नेटिज्म वो शो करेंगे जिनमें पैर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ओके, जिनमें पैर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और ये रिपेल होंगे मैग्नेटिक फील्ड से। और पैरामैग्नेटिज्म वो शो करेंगे जहाँ पे क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अप्लाइड फील्ड। ओके, जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं उन्हें हम फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं, बट ये भी एक फॉर्म है पैरामैग्नेटिज्म का ही। ओके, बहुत सारे ट्रांजिशन मेटल आयन पैरामैग्नेटिक होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, तो और ये स्पिन ओनली फॉर्मूला याद रखना है मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करने का, अंडर रूट n इंटू n प्लस 2, और n का मीनिंग है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और मैग्नेटिक मोमेंट का जो यूनिट है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बोहर मैग्नेटॉन। ओके, तो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे मैग्नेटिक मोमेंट उतना ज़्यादा आएगा, राइट। तो यहाँ पे कुछ आयंस दिए हुए हैं, 3D सीरीज़ के ये आयंस हैं और इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा है आयनिक फॉर्म में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताए गए हैं और इनका कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट और ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट, राइट। सो जैसे स्कैंडियम 3+ है तो इसके डी में 0 इलेक्ट्रॉन रहेगा, राइट,
तो इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, सो इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0, ऑब्जर्व्ड भी 0। फिर टाइटेनियम 3+ की बात कर रहे हैं, तो डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, तो इसका जो कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट है दैट इज़ 1.73 बोहर मैग्नेटॉन, और ऑब्जर्व्ड है 1.75। इसी तरीके से हर एक आयन के लिए है, ठीक है। ये टेलुरियम है, राइट, 3d2 स्कैंडियम टाइटेनियम, फिर टेलुरियम दिया हुआ है यहाँ पे, राइट। फिर ये वेनेडियम है, ये क्रोमियम है, मैग्नीज 2+, आयरन 2+, कोबाल्ट 2+, निकल 2+, कॉपर और जिंक, ठीक है। तो टेलुरियम इसको यहाँ पे स्कैंडियम 3D सीरीज़ में ये लिखना नहीं चाहिए इसको यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्कैंडियम से लेके स्कैंडियम टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक पूरे आ रहे हैं, राइट। तो ये हमारे पास यहाँ पे इनके जो हैं कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट हैं बाय यूजिंग स्पिन ऑनली फॉर्मूला, राइट। जिंक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है यहाँ पे भी, राइट, Zn2+ में, इसीलिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 है, ओके। सो अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाइवेलेंट आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, डाइवेलेंट आयन, ओके, जिसका एटॉमिक नंबर 25 है। तो एटॉमिक नंबर 25 किसका होता है, मैंगनीज का, ओके। तो डाइवेलेंट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, जब आप 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लोगे, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 3d5 4s2, जब डाइवेलेंट है 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिए तो ये 3d5 रहता है, ओके। तो 3d5 में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेगा, 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 5 है। तो स्पिन ऑनली फार्मूला में हम जो है ये वैल्यू रखेंगे, जो फार्मूला क्या था, मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू n इंटू n+2, ओके, अंडर रूट में। तो आप वैल्यू जो है 5 का यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, 5 इंटू 5 प्लस में 2, ओके। तो 5 + 2 7 होता है, 7 5 और 35, ओके, 7 5 और 35, तो अंडर रूट 35। तो इसका वैल्यू जो है 5.92 बोहर मैग्नेटॉन आता है हमारे पास, राइट। तो इस तरीके से मैग्नेटिक मोमेंट जो है कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा सकता है। अब देखो एटॉमिक नंबर दिया और डाइवेलेंट आयन दिया है, तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मैंगनीज +2, ओके, राइट। अब इसी तरीके से ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट आपने जो है कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला यही यूज़ करेंगे, म्यू इक्वल टू अंडर रूट n इंटू में n+2। आपको जो है मेटल आयन दिया हुआ है, जिंक दिया है, मतलब आपको एटॉमिक नंबर 27 दिया हुआ है, ओके। तो आप देखिए एटॉमिक नंबर 27 किसका होता है, वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं आप रिमूव कर दीजिए, फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बच रहा है वो वैल्यू यहाँ पे पुट करके इसका आंसर लाइए, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये कलर्ड आयंस फॉर्म करते हैं, या ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो कंपाउंड्स हैं वो कलर शो करते हैं। तो इसका रीज़न एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ऐसा क्यों। देखिए डिफरेंट कलर्ड यहाँ पे हमारे पास ये सोल्यूशन जो है अपीयर हो रहे हैं। कलर्स ऑफ सम फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल आयंस इन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, जैसे वेनेडियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जब ये एक्वस सोल्यूशन में है तो ये कुछ कलर शो कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही अट्रैक्टिव कलर्स दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे हमें, ठीक है। तो ये रीज़न क्या है कि क्यों ये कलर शो करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए कि हमारे पास व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ लोअर एनर्जी d ऑर्बिटल इज एक्साइटेड टू हायर एनर्जी d ऑर्बिटल, द एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन कॉरस्पॉन्ड्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड। जब ये इलेक्ट्रॉन जो है लोअर एनर्जी d ऑर्बिटल से हायर एनर्जी d ऑर्बिटल में आता है तो वो लो एनर्जी d ऑर्बिटल, ये हो गया हाई एनर्जी d ऑर्बिटल। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं और यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स हैं, ये लो एनर्जी d ऑर्बिटल है, ये हाई एनर्जी d ऑर्बिटल है। जब भी इलेक्ट्रॉन ने लो एनर्जी d ऑर्बिटल से हाई एनर्जी d ऑर्बिटल में जंप करके आना है, राइट, इसको एनर्जी पहले एब्जॉर्ब करना है विजिबल रीजन से, ठीक है, विजिबल रीजन से ये एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी। मान लीजिए इसने रेड कलर का जो है रेडिएशन एब्जॉर्ब किया, तो हमें जो एमिट करेगा ये जो मेटल होगा ट्रांजिशन मेटल, वो एमिट कौन सी रेडिएशन करेगा, एमिट करेगा वो हमारे पास ग्रीन। कौन सी एमिट करेगा, ग्रीन। कम्प्लीमेंट्री कलर जो है ये जो है एमिट करते हैं, ओके। तो देखिए आगे कंटिन्यू क्या है इसमें, दिस फ्रीक्वेंसी जनरली लाइज इन द विजिबल रीजन, ठीक है, किसमें रीजन, जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ये एब्जॉर्ब करता है वो फ्रीक्वेंसी कहाँ लाई करती है, विजिबल रीजन में। द कलर ऑब्जर्व्ड कॉरस्पॉन्ड्स टू कम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ द लाइट एब्जॉर्व्ड इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट ऑब्जर्व्ड इज डिटरमाइंड फ्रॉम द नेचर ऑफ द लिगेंड, राइट, क्योंकि 2 एनर्जी लेवल बन रहे हैं, डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं जिनका
डिजेनरेट एनर्जी होता है। तो इसके दो सेट्स बन रहे हैं, लो एनर्जी लेवल एंड हाई एनर्जी लेवल। ये कब? जब भी हमारे पास लिगेंड दैट इज़ एनाइन ओके हमारे पास अप्रोच करता है टुवर्ड्स द डी ऑर्बिटल ऑफ द मेटल, so this degeneracy get broken down into two energy levels okay so in aqueous solution where water molecules are ligands, aqueous solution में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल लिगेंड होगा। जैसे हमारे पास ऐसे होगा Fe वाटर 6 टाइम्स 3+, तो ये क्या है, लिगेंड रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। ये मेटल के डी ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सो इट इज़ लिगेंड। द कलर ऑफ द आयंस ऑब्जर्व्ड आर लिस्टेड टेबल 4.8 ओके। अ फ्यू कलर्ड सॉल्यूशंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर इलस्ट्रेटेड ओके। जैसे स्कैंडियम है तो अगर डी में 0 इलेक्ट्रॉन है तो ये कलरलेस होगा। टाइटेनियम 4+ कलरलेस, टाइटेनियम 3+ पर्पल कलर का होता है। वेनेडियम 4+ ब्लू कलर का होता है। वेनेडियम 3+ का अगर आयन है हमारे पास सोल्यूशन है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ग्रीन होगा। क्रोमियम 3+ वायलेट ओके। मैंगनीज 3+ वायलेट, क्रोमियम 2+ ब्लू, मैंगनीज 2+ पिंक, आयरन 3+ होगा तो येलो, 2+ होगा तो ग्रीन, कोबाल्ट 3+ हो या 2+ हो ये ब्लू पिंक आता है, निकल 2+ ग्रीन, कॉपर 2+ ब्लू, जिंक 2+ कलरलेस। क्यों? डी में 0 इलेक्ट्रॉन है। जिसकी भी डी में 10 इलेक्ट्रॉन होगा और 0 इलेक्ट्रॉन होगा वो कलरलेस होगा, और रेस्ट जो है वो क्या है, कलर शो करेंगे। और कलर कौन से अपीयर होंगे, कम्प्लीमेंट्री ओके, कम्प्लीमेंट्री कलर्स अपीयर होते हैं ओके। तो दिस वाज समथिंग अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। और रीज़न क्या है क्यों कलर शो करते हैं, क्योंकि ये जो है एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं विजिबल रीजन से, और क्यों, उनको एक्साइटेशन करनी है, डी ट्रांजिशन करना है, ठीक है। एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल जो में इलेक्ट्रॉन जंप करके जा रहा है दैट इज़ डी ट्रांजिशन, तो उसके कारण जो है कलर अपीयर होता है। और भी रीजंस होते हैं डी ट्रांजिशन के अलावा हमारे पास जो है कहीं पे एक्सेप्शंस हैं, जैसे MnO4-, तो वहाँ पे चार्ज ट्रांसफ़र के कारण जो है कलर अपीयर होता है, चार्ज ट्रांसफ़र, ठीक है। दिस इज़ नॉट द ओनली क्राइटेरिया फॉर द transition metal to show color that it will have only dd transition, this is also the other criteria। दूसरा क्राइटेरिया भी है that is charge transfer। चार्ज ट्रांसफ़र, लिगेंड जो है वो चार्ज ट्रांसफ़र करेगा मेटल को, उस कारण भी जो है कलर्ड आयन या कलर्ड कंपाउंड हमें अपीयर होते हैं ओके। आर यू गेटिंग दिस ओके। सो अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिए फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड्स। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये कम्प्लेक्स कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं दे फॉर्म कम्प्लेक्स कंपाउंड्स। जैसे इस तरह के कंपाउंड, कॉपर के साथ 4 अमोनिया एज अ लिगेंड अटैच है और इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज 2+ मतलब कॉपर का। तो इस तरह के ये कंपाउंड जो हैं इन्हें कम्प्लेक्स कंपाउंड्स कहा जाता है ओके। तो ये जो हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, ये क्यों ये कम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे ये कॉपर है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, प्लेटिनम है, आयरन है, ये क्यों जो है ये कम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। कम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर दोज इन विच मेटल आयंस बाइंड्स अ नंबर ऑफ एनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। जहाँ पे मेटल आयन जो है डी ब्लॉक का वो बहुत सारे एनायंस के साथ या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करता है, कंबाइन होता है। जैसे अमोनिया एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, CN ठीक है न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ठीक है, या जैसे F- एनाइन है, Cl- एनाइन है, ठीक है। Cn जो है एज अ लिगेंड CN- होता है, राइट। CO होता है हमारे पास न्यूट्रल, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर जैसे अमोनिया है और वाटर है, दीज आर न्यूट्रल लिगेंड्स, ठीक है। जैसे साइनाइड है CN-, OH-, या फिर F-, Cl-, दीज आर एनाइंस ओके और नेगेटिव लिगेंड्स। तो जब ये नेगेटिव लिगेंड अप्रोच करता है मेटल आयन को, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल को। उस कारण क्या है, ये टेंडेंसी रखते हैं कम्प्लेक्स स्पीशीज़ बनाने का। तो ये एग्जांपल्स हैं कम्प्लेक्स स्पीशीज़ के ओके। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम इनका नेमिंग भी सीखेंगे। जैसे आयरन है हमारे पास, ये जो है 4-6 CN लिगेंड्स के साथ जो है कंबाइन हुआ है और ओवरऑल चार्ज हमें 3- दिया हुआ है ओके। तो दीज आर दी कम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ठीक है। द केमिस्ट्री ऑफ द कम्प्लेक्स कंपाउंड्स इज़ डेल्ट विद इन डिटेल इन यूनिट 5, ठीक है। लेकिन ट्रांजिशन मेटल जो है लार्ज नंबर ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। इसका रीज़न क्या है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि क्यों ये कम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। सो यू हैव टू राइट दिस इज़ ड्यू टू द कंपेरेटिवली स्मॉलर साइजेस ऑफ द मेटल आयन। जो ये मेटल आयंस हैं, ट्रांजिशन मेटल आयंस हैं, इनका स्मॉलर साइज़ है
और इनका आयनिक चार्ज बहुत हाई होता है। एंड इनके पास जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ इनके पास डी ऑर्बिटल जो है अवेलेबल होता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। जो भी लिगेंड आएगा उसके साथ ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। ओके, जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा डी का वो जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो दिस इज़ द मेन रीज़न, ये रीज़न आप जो है लिख सकते हैं वाई दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट थिंग वी हैव टू डिस्कस हियर दैट इज़ कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर compounds of the transition elements, they act as catalyst. Okay, so why they act as catalyst, we have to know the reason. Okay, transition metals and their compounds are known for their catalytic activity. Okay, this activity is ascribed to their ability to adopt multiple oxidation states, right, and to form complexes. Vanadium oxide, that is oxidation oxidation state +5 in contact process, right. Vanadium oxide, it is used as a catalyst in contact process, that is formation of sulfuric acid in the industry. This is the manufacturing of H2SO4. This is the contact process. Okay, right. Finely divided iron, it is used as a catalyst in Haber's process, that is manufacturing of ammonia. And nickel in catalytic hydrogenation. Okay, these are some of the examples, right. Catalyst act at a solid surface involve the formation of bond between reactant molecule and atoms of the surface of the catalyst. First row transition metals utilize 3d and 4s electron for bonding. Okay, so this has the effect of increasing the concentration of the reactants and the catalyst surface, and also weakening the bonds of the reactant molecules. Okay, that is activation energy is lowered. Also, because the transition metal ions can change their oxidation state, they become more effective as catalyst, right. For example, iron 3, it catalyzes the reaction between iodide and persulfate ions. Okay, this is persulfate ion. Okay, and this is iodide, right. And this iron 3, it catalyzes this, and it will get catalyzed into I2 and sulfate ion. An explanation for this catalytic action can be given as this iron 3 plus, it will combine with this iodide ion and will convert it into Fe2 plus में iodine. Okay, finally this iron 2 plus will react with this persulfate ion and we will get iron. Okay, and 2 times sulfate ion. Okay, so this is important why they act as catalyst. Okay, now the formation of interstitial compounds. So this is also very important property why the transition elements they form interstitial compound, right. Interstitial compounds are those which are formed when small atoms like hydrogen, carbon or nitrogen are trapped inside the crystal lattice of metals. We have a crystal lattice of the transition metal, and these small atoms they get trapped inside the crystal. Okay, so the structure formed is the interstitial compound of the transition metal. They are usually non-stoichiometric. Okay, that is stoichiometry is not balanced and are neither typically ionic nor covalent. Okay, for example, titanium carbide, right, manganese, right, with nitrogen, Fe3H. Okay, this is vanadium with hydrogen. Okay, and this is titanium with hydrogen. Okay, the formulas quoted do not of course correspond to any normal oxidation state of the metal, but because of the nature of their composition, these compounds are referred to as interstitial compounds. Suppose we have the this crystal lattice of the titanium. Okay, इसको समझिए, ये हमारे पास क्रिस्टल लैटिस क्या है, टाइटेनियम का है। ये टाइटेनियम का क्रिस्टल लैटिस हम आपको बता रहे हैं। तो ये जो हमारे पास वैकेंट स्पेस है, यहाँ पे आके स्मॉल एटम, जैसे यहाँ पे आके कार्बन आ गया। ओके, कार्बन आ गया, ये क्या बन गया हमारे पास, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बन गया। ओके, वाई दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड, राइट। द प्रिंसिपल physical and chemical properties of these compounds are as follows, right. They have high melting point, higher than those of pure metals. They are very hard. Okay, these interstitial compounds are very hard. Okay, and some borides approach diamond in hardness. Okay, they retain metallic conductivity. Okay, and they are chemically inert, right. Now alloy formation, these transition elements form alloys. So
Alloy is a blend of metals prepared by mixing the components. Okay, alloys may be homogeneous solid solutions in which the atoms of one metal are distributed randomly among the atoms of the other. Such alloys are formed by atoms with metallic radii that are within about 15% of each other. Because of similar radii and other characteristics of transition metals, alloys are readily formed by these metals. The alloys so formed are hard and have often high melting points. The best known are ferrous alloys. Chromium, vanadium, tungsten, molybdenum, and manganese are used for the production of a variety of steels and stainless steels. Alloys of transition metals with non-transition metals such as brass, right? Its composition is copper and zinc. Bronze, its composition is copper and tin, are also considerable industrial importance. Okay, these are the alloys. Remember these compositions. Okay, now we will stop this video lecture here. Okay, thank you.